اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں لندن کی ایک شیطانی چڑیل کے چنگل میں پھنسنے والی دوشیزہ کی پراسرار کہانی۔ مارتھا، جو دیکھنے میں مشکل سے 18 سال کی لگتی تھی، بڑے اعتماد کے ساتھ ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سے نیچے اتری۔ اس وقت شام کے کوئی 7-8 بجے تھے۔ ہوا میں کافی خنکی تھی۔ اس نے کالر پر پڑے اپنے چمکیلے سیاہ بالوں کو لمبی لمبی انگلیوں سے ٹھیک کیا۔ جیسے ہی ہوا کے ایک اور سر جھونکے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا، مارتھا نے جلدی سے ٹھٹرتے ہاتھوں سے اپنا نیا سوٹ کیس اور ہلکا پھلکا ٹائپ رائٹر، جو سفر میں آسانی سے ساتھ لے جا سکتا تھا، کلی کے آگے رکھ دیا۔ ایک ٹیکسی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس نے کلی کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہتے ہوئے دوسرے مسافروں پر نظر ڈالی، جو کہ اسٹیشن پر جلنے والی مدھم اور ناکافی روشنی میں سردی کی وجہ سے سکڑے سمٹے نظر آ رہے تھے۔ مارتھا نے کلی کو اپنے آگے چلنے کا اشارہ کیا تاکہ اپنی مطلوبہ ٹیکسی تلاش کر سکے۔ گھبراہٹ اور جوش کی حالت میں اس نے اپنی نوکری کے بارے میں سوچا تو اسے اپنے دل کی دھڑکن میں تیزی محسوس ہوئی۔ اسے یہ نوکری کسی پرائیویٹ کمپنی کی طرف سے آفر ہوئی تھی۔ تمام معاملات خط و کتابت کے ذریعے طے ہوئے تھے۔ وہ اسی نوکری کے سلسلے میں لندن کے اس دور دراز علاقے میں آئی تھی۔ چاند کی زرد روشنی بادلوں کا سینہ چیر کر ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے کلی کو واپس آتے دیکھا، جس نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے ناں میں سر ہلایا، تو بے چینی کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ کلی، جو اب اس کے پاس آ چکا تھا، بولا، میڈم، یہاں تو کوئی ٹیکسی آپ کے انتظار میں نہیں کھڑی۔ اسی وقت مارتھا کی نظر نزدیک کے ایک آدمی پر پڑی، جس نے اخبار کو لپیٹ کر اپنے دانتوں میں دبا رکھا تھا اور اپنے چمڑے کے دستانے اتار رہا تھا۔ مارتھا نے نظریں اس شخص سے ہٹا کر مایوسی سے کلی سے کہا، مگر ٹیکسی موجود ہونی چاہیے تھی۔ مسز لیونگ نے مجھے خط میں یہ بتا دیا تھا کہ یہاں پہنچنے پر انہوں نے میرے لیے ٹیکسی کا بندوبست پہلے سے کر دیا ہوگا۔ کلی نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ پھر بولا، لیکن یہاں تو کوئی بھی ٹیکسی موجود نہیں۔ آپ کو جانا کہاں ہے؟ مجھے بیلے فورٹ تک جانا ہے، مارتھا نے جواب دیا۔ کلی نے کچھ سوچا، پھر بولا، میڈم، پھر تو آپ کو بس کا انتظار کرنا ہوگا جو آپ کو بیلے فورٹ تک لے جائے، یا پھر… اتنا کہہ کر پھر کلی تیزی سے اس آدمی کی طرف بڑھا جو اپنے دستانے اتار کر وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مسٹر کینٹ، کیا آپ میڈم کو اپنی گاڑی میں بیلے فورٹ تک لفٹ دے سکتے ہیں؟ کلی جانتا تھا کہ بیلے فورٹ جانے والی بس کے آنے میں بھی کوئی 25 منٹ باقی ہیں، اور اتنی ٹھنڈ میں تو اب 5 منٹ انتظار کرنا مشکل تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آدمی جس کا نام کینٹ تھا مارتھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ مارتھا نے کلی کو اس کا معاوضہ پکڑایا اور چپتی نظروں سے کینٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شکریہ، میں بس کا انتظار کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر مسٹر کینٹ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس پر مارتھا کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں اسے یہ احساس ہو گیا کہ واقعی اتنی ٹھنڈ میں یہاں کھڑا رہنا کتنا مشکل تھا۔ ٹھنڈ سے اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ بیچارگی کے عالم میں اس نے کینٹ نامی شخص کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں۔ اس نے جلدی سے چاروں طرف دیکھا۔ مسٹر کینٹ دور کھڑی اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کر لیتا، مارتھا اپنی چیزیں اٹھائی، تیزی سے بھاگتے ہوئی کار تک پہنچی اور مسٹر کینٹ سے لفٹ کے لیے کہا۔ اس دفعہ مسٹر کینٹ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا اور مارتھا کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمام راستے اس نے زیادہ بات نہیں کی۔ ہاں، کینٹ کے پوچھنے پر مارتھا نے یہ ضرور بتا دیا کہ وہ کسی نوکری کے سلسلے میں یہاں آئی ہے، اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ کینٹ نامی یہ شخص ایک جرنلسٹ ہے۔ پھر جیسے ہی بیلے فورٹ کا سٹاپ آیا، مارتھا نے اسے رک جانے کے لیے کہا۔ کینٹ نے جب کہا کہ وہ اسے اس گھر تک چھوڑ آئے گا جو اسے رہائش کے طور پر ملا ہے، تو مارتھا نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہاں سے آگے وہ خود ہی چلی جائے گی۔ وہ اجنبیوں سے بے تکلف ہونا پسند نہ کرتی تھی، لیکن جب مسٹر کینٹ نے اس سے یہ کہا کہ اجنبی شہر میں ہوتے ہوئے اگر اسے کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ کینٹ سے رابطہ کر سکتی ہے، تو غیر ارادی طور پر اس نے کینٹ کو ایک پیپر دیا جس پر اس کی رہائش جو اسے نوکری کے ساتھ ہی ملی تھی اس کا پتہ لکھا تھا۔
और उससे उसका टेलीफोन लेकर अपने बैग में रख लिया। मिस्टर केंट ने भी वो पेपर वैसे ही तय किया हुआ अपनी जेब में रख लिया। स्टॉप से मार्था आगे चल पड़ी। उसे ज़्यादा दिक्कत ना हुई क्योंकि उस घर का नक्शा उसके पास था। जल्दी वो स्याह रंग की एक इमारत के सामने खड़ी थी जो बहुत बड़ी तो ना थी लेकिन खासी अजीम शान थी। तो मुझे यहाँ रहना है, मार्था ने खुश होते हुए सोचा। इमारत के बाहर मिसेस लियोंग के नाम की तख्ती लगी थी, लेकिन हैरत की बात थी कि दरवाज़ा बाहर से मुक़फ़ल ना था। फिर मार्था ने सोचा कि हो सकता है मिसेस लियोंग यहाँ उससे मुलाकात के लिए मौजूद हो या फिर कोई मुलाजमा, लेकिन मेरे लिए मुलाजमा, ये सोचकर मार्था को हंसी आ गई और वो सर झटक कर अंदर दाखिल हुई। उसकी हैरत बहुत बढ़ गई जब उसने इमारत को अंदर से भी खाली पाया। अगर यहाँ कोई मौजूद नहीं तो फिर दरवाज़ा पहले से क्यों खुला था? मार्था के माथे पर शिकने उभर आईं, लेकिन वो एक बहादुर लड़की थी। उसने सारे ख्यालात को जहन से झटका। शदीद भूख महसूस करते हुए उसने सबसे पहले किचन तलाश करने का सोचा। गरम गरम खाना और कॉफ़ी का ख्याल आते ही उसकी भूख चमक उठी। जल्द ही उसे किचन मिल गया। अच्छा साफ़ सुथरा किचन था जिसमें एक अदद छोटा रेफ्रिजरेटर भी मौजूद था। उसे यकीन हो गया कि उसके खाने पीने के लिए बहुत सा सामान फ्रिज में मौजूद होगा, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोला एक नागवार सी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। उसमें खाने के लिए एक अंगूर का दाना तक न था, बल्कि नागवार सी बू जो यकीनन कच्चे गोश्त और खून की थी उससे भरा हुआ था। मार्था ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। बदबू से उसे उबकाई महसूस होने लगी थी। उसने किचन की जल्दी जल्दी तलाशी ली, लेकिन किचन में खाने को कुछ भी ना था। अलमारियां खाली पड़ी थीं। हद तो ये थी कि नलकों में पानी तक नहीं आ रहा था। शदीद परेशानी के आलम में वो किचन से बाहर आ गई। अब पहली दफ़ा उसे महसूस हुआ कि पूरा घर शदीद सर्दी की लपेट में था। हालांकि सारे खिड़कियां दरवाजे बंद थे। भूख और सर्दी की शिद्दत से निढाल होकर वो धप से सोफे पर गिर पड़ी। अचानक उसको महसूस हुआ जैसे कमरे में किसी ने सिसकी भरी हो। मार्था ने चौंक कर कमरे में निगाह दौड़ाई। कमरे में तो क्या, उस पूरे घर में उसके अलावा कोई न था। फिर ये आवाज़ कैसी थी? मार्था ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर उन्हें तर किया। उसके दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से उभरी कि काश इस वक्त उसका कोई अपना उसके पास होता। तन्हाई का एहसास खौफ को जन्म देता है, लेकिन वो तो इस शहर में बिल्कुल अकेली थी। कोई भी तो जानने वाला ना था। मिसेस लियोंग जिन्होंने उसे ये मुलाजमत दी थी, उसकी तो उनसे मुलाकात तक ना हुई थी। ऊपर से रिहाइश के लिए उन्होंने इस पुरअसरार से मकान का बंदोबस्त कर दिया था। मार्था को यकायक मिसेस लियोंग पर गुस्सा आने लगा। गुस्से के आलम में उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र टेलीफोन पर पड़ी। यकदम उसके चेहरे पर इत्मीनान झलक आया। उस जर्नलिस्ट का फ़ोन नंबर तो उसके पास था जिसने उसे स्टेशन से लिफ्ट दी थी। वो कुछ माकूल आदमी नज़र आता था। मार्था फ़ौरन फ़ोन की तरफ बढ़ी ताकि उससे बात करके अपनी परेशानी कम करे। फिर जैसे ही उसने रिसीवर उठाया तो उस पर यह इंकशाफ हुआ कि फ़ोन डेड पड़ा था। गुस्से की शिद्दत से उसका मुंह सुर्ख हो गया। उसने दिल में मिसेस लियोंग को 1000 गालियाँ देते हुए अपना बैग उठाया। मुझे खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूख ने मेरे आसाब पर बुरा असर डाला है। अब मुझे घर से बाहर जाकर खाने पीने का कुछ सामान लाना होगा। ये सोचकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा तो खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। ये कैसे हुआ? दरवाज़ा किसने बंद किया? क्या इस घर में मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है? अगर ऐसा है तो वो सामने क्यों नहीं आता? यकायक उसे ऐसा लगा जैसे वो उस चूहे की मानित है जो पिंजरे में फंस जाने के बाद बिल्कुल बेबस हो जाता है। उसे किसी अनजानी हस्ती ने कमरे में बंद कर दिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो किसी बहुत बड़े ख़तरे में फंस गई है? गम की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से वापस हुई और सोफे पर बैठ गई। ना जाने कितनी देर वो ऐसे ही बैठी रही। उसे अपनी बूढ़ी माँ और 2 छोटी बहनों की याद आने लगी। उसका बाप का चंद साल पहले इंतकाल हो गया था। भाई को था नहीं, लिहाजा घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसके कांधों पर आ गई थी और यही वजह थी कि तालीम हासिल करने के बजाय उसने ये नौकरी करने का फ़ैसला किया।
और ये भी ना सोचा कि अजनबी लोगों से सिर्फ ख़त के ज़रिए सारे मामलात तय करके वो इस अजनबी शहर में अकेली ही चली आई थी। दफतन कमरे का हैंडल घूमा, कोई बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने वाला था। मार्था ने जल्दी से इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ना जाने आने वाला कौन था और उसके क्या इरादे थे। अपने बचाव की खातिर उसने पास पड़ा एक गुलदान उठा लिया और ज़रा दूर हटकर खड़ी हो गई। फिर दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। औरत पर नज़र पड़ते ही मार्था खड़ी की खड़ी रह गई। उसकी वजह उस औरत की शख्सियत थी। दराज कद और भरे भरे जिस्म की मालिक ये औरत खासी अमीर नज़र आती थी। गोरी रंगत पर नीली आंखें, जिन पर उसने सुनहरी फ्रेम का चश्मा लगा रखा था, जो यकीनन उसके बेपनाह खूबसूरत चेहरे की खूबसूरती में और भी इजाफा कर रहा था। औरत की उम्र कोई 30-35 के लगभग होगी और वो स्याह रंग के बड़े शानदार लिबास में थी। काले लिबास में से उसके सफ़ेद बाजू यूं नज़र आ रहे थे जैसे संगे मरमर में ढले हों। पतले पतले सुर्ख होंठ किसी कबूतर के खून की माने दिखाई देते थे। मार्था जैसे सहरज़दा सी उसे देखती रह गई। मुझे मिसेस लियोंग कहते हैं, औरत ने अपनी नज़रें मार्था पर गाड़ते हुए अपना तारुफ करवाया। मार्था को जैसे एकदम होश आ गया। मिसेस लियोंग, तो ये हैं वो खातून जिन्होंने मुझे नौकरी दी है, लेकिन ये अचानक यहाँ कैसे आ गई? मार्था ने उलझे हुए अंदाज में सोचा, लेकिन कुछ पूछने की जुर्रत ना कर सकी। यकीनन तुम्हें घर पसंद आया होगा ना? उफ़ो, मैं माजरत चाहती हूँ कि स्टेशन पर तुम्हें लेने के लिए गाड़ी ना भिजवा सकी। मुझे भूलने की आदत है ना। तुम्हें तकलीफ़ तो हुई होगी ना यहाँ तक पहुँचने में? मार्था ने बहुत चाहा कि वो कुछ बोले, लेकिन उसकी ज़ुबान तो जैसे गूंग हो गई थी। फिर भी उसने सर को नफ़ी में हिला दिया। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने को कुछ लाती हूँ। असल में मुझे अपने मुलाजमों का ख्याल रखना अच्छा लगता है। मैं किसी को खुद से कमतर नहीं समझती ना। चूँकि सफ़र से आई हो, थकी हुई हो, लिहाजा मैंने सोचा कि तुम्हें खाना वगैरह खुद ही दे आऊँ और साथ में ये भी पता कर लूँ कि किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। इतना कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। मार्था ने उसके जाते ही सुकून का सांस लिया। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसकी शख्सियत कितनी पुरअसरार और खौफनाक लगती है। और उस खाली किचन में से ये मेरे खाने के लिए चालाक औरत क्या लाएगी? मार्था ने सर झटका, किचन की तरफ देखा और सोफे पर बैठ गई। बेख्याली में उसका हाथ साथ रखी मेज़ पर पड़ी किसी चीज़ पर पड़ा तो वो चीज़ नीचे गिर गई। मार्था ने जल्दी से झुककर वो चीज़ उठाई। ये एक लड़की का मुजस्मा था जो पत्थर का बना हुआ था, लेकिन जिस बात ने मार्था को चौंकने पर मजबूर किया वो ये थी कि मुजस्मे की सूरत बिल्कुल मिसेस लियोंग जैसी थी। फिर अचानक उसे लगा जैसे मुजस्मे में हरकत हुई हो और उसने अपनी आंखें उठाकर मार्था की तरफ देखा हो। मार्था की तो जैसे जान निकल गई। उसने जल्दी से मुजस्मा परे फेंक दिया। यहाँ ज़रूर कोई ख़तरनाक खेल खेला जाने वाला है। मुझे ये घर आसेब ज़दा लगता है और ये औरत, ये खुद भी किसी खबीस रूह से कम नहीं लगती। मुझे फ़ौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ, मुझे भाग जाना चाहिए, मार्था ने खुद से कहा और जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागी। लेकिन उस वक्त मिसेस लियोंग किचन में से बरामद हुई और उसने हाथों में ट्रे पकड़ रखा था जिसमें तरह तरह के खाने रखे थे। भुना हुआ मुर्ग, सैंडविच, कॉफ़ी का मग और न जाने क्या कुछ। गरम गरम खाना देखकर मार्था के दिल की धड़कन और भी तेज़ हो गई, इसलिए कि वो जानती थी कि किचन में तो खाने पीने की कोई भी शय नहीं थी। फिर चंद मिनटों में ये गरम गरम खाना। सख्त सर्दी के बावजूद मार्था की पेशानी पसीने से भीग गई। बैठ जाओ और खाना खाओ, मिसेस लियोंग ने उसकी आंखों में झांकते हुए जैसे हुक्म दिया और वो जल्दी से बैठ गई। उस औरत की आंखों ने जैसे उस पर सहर सा कर दिया था। वो खामोशी से बैठ गई और चुपचाप खाना खाने लगी। इस दौरान वो औरत सामने बैठे मुसलसल उसे देखती रही। जब वो खाने से फारिग हुई तो मिसेस लियोंग उठ खड़ी हुई। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो, इतना कहकर वो बाहर को चल दी। उसके जाते ही मार्था को जैसे होश आ गया। उसने भागकर जाकर दरवाज़ा देखा तो दरवाज़ा बाहर से फिर लॉक हो गया था। ये मैं किस शैतानी चक्कर में फंस गई हूँ? मार्था ने अपना सर थाम लिया और जैसे ही पलटी, खाने की ट्रे पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रे में चंद मिनट पहले जो बचा कुचा खाना पड़ा था वो बदल चुका था। सैंडविचेस की जगह किसी मुर्दे की हड्डियां पड़ी थीं। भुने हुए मुर्ग की जगह इंसानी हाथ जो ताज़ा कलाइयों से कटे हुए थे।
क्योंकि उनमें से अभी तक खून रिस रहा था, और कॉफ़ी के मग में जो कि मार्था पी चुकी थी, पैंदे में जो सियाल नज़र आ रहा था वो यकीनन इंसानी खून था। ये मंजर इतना खौफनाक था कि मार्था बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होती चली गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को उसी कमरे में पाया। वो बेड पर लेटी थी और नज़दीक ही कोई औरत खड़ी पीछे किए कुछ करने में मसरूफ़ थी। मार्था को सब कुछ याद आ गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत बिलाशुबा मिसिस लियोंग ही थी, और अब ना जाने यहाँ मौजूद क्या कर रही थी। अभी मार्था उठकर बैठने ही लगी थी कि उस औरत ने पलटकर मार्था को देखा। उफ मेरे खुदाया, उसका चेहरा कितना भयानक हो गया था। आंखों के गिर्द गहरे घड़े, सफ़ेद होंठ और चेहरे की रंगत बिल्कुल सफ़ेद लट्ठे की तरह। बड़ी बड़ी आंखें बेइंतहा सुर्ख, जैसे चेहरे का सारा खून सिमट कर आंखों में आ गया हो। फिर जैसे ही मार्था की नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके हाथों में एक बड़ी सी छुरी थी जिसकी तेज धार चांदी की तरह चमक रही थी। मार्था की चीख के जवाब में उसने मुस्कुराकर मार्था की तरफ देखा तो उसके लंबे लंबे सफ़ेद दांत मुंह से बाहर निकल आए। लड़की, ज़्यादा शोर ना मचा, देख मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक होने के लिए खून चाहिए, ताज़ा और गर्म। तेरे जैसी सेहतमंद लड़की का खून, अब तो खामोशी से लेट जा ताकि मैं तेरी शहरक काट कर तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊं। इतना कहकर वो छुरी पकड़े मार्था की तरफ बढ़ी। खौफ से मार्था की गिगी बंद गई। उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत यकीनी है। ये पागल औरत जो शायद कोई बदरू है इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो टिकटिकी बांधे मिसिस लियोंग को देखने लगी जो छुरी उठाए लम्हा बलम्हा उसके नज़दीक आ रही थी। जान तो हर इंसान को प्यारी होती है। मार्था को भी उसी लम्हे और तो कुछ ना सूझा। उसने जल्दी से बिस्तर की चादर उठाई और मिसिस लियोंग के ऊपर डालकर उसे धकेलती हुई दरवाजे की तरफ भागी। उसकी खुशकिस्मती के दरवाज़ा खुला था। मार्था पूरी ताकत से दौड़ती हुई उस इमारत से बाहर निकल आई। उस वक्त कोई आधी रात का वक्त था, लेकिन गली में स्ट्रीट लाइट की रोशनी फैली थी। मार्था को लग रहा था जैसे मिसिस लियोंग उसके पीछे पीछे आ रही है। अचानक वो भागते भागते किसी से टकराई और फिर बेहोश होती चली गई। उधर मिस्टर केंट, जो कि एक जर्नलिस्ट था और जिसने मार्था को बैले फोर्ट तक लिफ्ट दी थी, रात जैसे ही उसने घर पहुंचकर कपड़े तब्दील करने लगा, उसकी जेब से मार्था का पता निकल आया। उसने सरसरी निगाह उस पते पर डाली तो उछल पड़ा। मकान नंबर 102, स्ट्रीट नंबर 4, बैले फोर्ट, ब्लैक बिल्डिंग। ब्लैक बिल्डिंग का नाम पढ़ते ही उसने अपना सर पकड़ लिया। इस मासूम लड़की की जान खतरे में थी। ब्लैक बिल्डिंग आसेफ ज़दा मशहूर थी। इससे पहले भी उसके बाहर से 6 लड़कियों की लाशें मिल चुकी थीं, जिनकी गर्दनें एक कान से दूसरे कान की लो तक कटी हुई थीं और जिनके जिस्म से खून का एक एक कतरा गायब होता था। बाद में पुलिस की तफ्तीश से पता चलता कि उनमें से हर लड़की किसी दूर के इलाके से ताल्लुक़ रखती थी और उसके घर वालों के मुताबिक वो किसी नौकरी के सिलसिले में यहाँ आई हुई थी। मिस्टर केंट, जो जर्नलिस्ट थे, वो इन वाक़यात का पूरी तरह इल्म रखते थे। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आया कि ये पता होने के बावजूद कि बैले फोर्ड ही वो मनहूस इमारत थी और ये भी कि मार्था वहाँ नौकरी के सिलसिले में आई थी, उसके जहन में ये ख्याल क्यों ना आया कि मार्था को भी उसी शैतानी चक्कर में फंसाया जा रहा है। उसने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 11 बज रहे थे। उस लड़की को हर सूरत में बचाना होगा, मिस्टर केंट ने सोचा और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा दिया। वो फादर माइकल के पास जा रहा था, इसलिए कि शैतानी कुव्वतों से निमटने के लिए उसे उनकी मदद की ज़रूरत थी। फिर फादर के पास पहुंचकर उसने उन्हें तमाम बात से आगाह किया। फादर भी फ़ौरन उठ खड़े हुए। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि हम उस मासूम लड़की को ना बचा सकें। दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी को बैले फोर्ट की तरफ दौड़ा दिया। गाड़ी उस गली के बाहर खड़ी करके दोनों जल्दी से बाहर निकले और फिर बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगा दी। ये वही लम्हा था जब मार्था अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से बाहर आ चुकी थी और वो शैतानी औरत भी उसके पीछे थी, और मार्था उस वक्त मिस्टर केंट से ही टकराई थी, जिसने फ़ौरन ही उसे संभाला दिया, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। उधर वो शैतानी औरत भी मिस्टर केंट के साथ फादर को देखकर ठिठक गई थी।
उसने वापस भागना चाहा, लेकिन फादर ने उसे भागने का मौका ही ना दिया और मुंह में कुछ पड़ते हुए हाथ में पकड़ी स्लीब का रुख उसकी तरफ कर दिया। इसके साथ शैतानी औरत के जिस्म में आग लग गई और वो वहशतनाक अंदाज में चिल्लाने लगी। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर तमाम घरों से लोग बाहर निकल आए और खौफजदा होकर ये मंजर देखने लगे, और फिर देखते ही देखते वो खबीस चुड़ैल जलकर खाक हो गई। इससे पहले फादर उसका कुछ इसलिए ना बिगाड़ सके थे कि वो बिल्डिंग से बाहर कभी नहीं मिली थी, और बिल्डिंग के अंदर उन्होंने जब भी दाखिल होना चाहा था, कोई नादीदा हस्ती उन्हें अंदर दाखिल होने से रोक देती थी। अब जबकि वो शैतानी मनहूस चुड़ैल मर चुकी थी, फादर ने बिल्डिंग को चारों तरफ से मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी ताकि आइंदा वहाँ कोई और शैतानी कुव्वत बसेरा न करे। इधर मार्था को मिस्टर केंट हॉस्पिटल ले गया, जहाँ थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया। खुद को महफूज देखकर मार्था को यकीन ही ना आया, लेकिन फिर जब मिस्टर केंट ने उसे तमाम वाक़या बताया तो उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि उसकी बूढ़ी माँ की दुआओं के नतीजे में आज उसकी ज़िंदगी बच गई और खुदा की तरफ से उसे ये इमदाद मिली, वरना अगर वो मिस्टर केंट को अपना पता ना देती तो ना जाने उसके साथ क्या होता। फिर जब मिस्टर केंट ने उसे अपने अखबार में एक अच्छी नौकरी की ऑफ़र की तो मार्था के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। असल जॉब तो उसे अब मिल गई थी।